Everyone, welcome in geography class. In the last lecture, we had learned chapter number 5 Natural Vegetation and Wildlife. And in this part of the chapter, we had learned about the Brazil wildlife and the geographical explanation about the Brazil wildlife. Now, today we are going to learn the next part of this chapter. And the next point is India wildlife. India wildlife. Then, now listen carefully. India wildlife show the following animals in outline map of India in figure 5.5 with the help of sign and symbol according to their habitat. Answer the following questions. Then now we can see here the blank map of India, and we have to fill the map with the symbols of habitat of the animals, and some name of the animals are here, like a Bengal tiger, great Indian bustard, then olive, redly turtles, then one horn rhinos, then Nilgiri Thar goat, then lion, and uh, uh, Gangetic dolphin, then swamp deer, then crocodile or girgai, alligator. Sorry, gharials, alligators. Now some questions are there. Correlate geographical condition and the flora and fauna. There. Then we can say the answer of this question like this, uh, by our information that geographical condition affect measurably the flora and fauna in the region in India. Due to extreme cold climate, limited varieties of the flora and fauna are seen in Himalayan range. The trees in the cold region have needle-shaped leaves. Most of the animals in this region have thick fur. Then moderate climate condition in the North Indian plain and peninsula physiographic divisions of India are highly suitable for the growth and development of the flora and fauna. Therefore, varieties of the flora and fauna are seen in these regions. Then Thar Desert have adverse geographical and climate condition. Therefore, minimum varieties of the flora and fauna is found there. In this arid region, thorny vegetation is seen. Camel is also found in this region. Then mangrove and sundarbans are found in the hot, humid coastal areas of India. Many species of the bird fish are also found in the coastal region. Then the next question is there. Do you know some other animals too? Yes, we can say that the other animals like leopard, cheetah, fox, jackals, then elephant, deer, camels, etc. We can say that. And then next question is there. Name some habitats of tigers in India. Show the habitats of tigers in India with their names on a map. Then we can say the answer like that, Tadoba, then Melghat, Pench, then Sundarbans, Jim Carborate, then Ranthambore, Periyar, etc. Such a type of tiger habitats are there. Then the next question is there, that is, why is their habitat found in this region? Then we can say the answer of this question is like that, grassland is found on the largest scale in the areas of Tadoba, Melghat, Pench and Sundarban, Jim, Corporate and Ranthambore, etc. in India. Then grazers like cow, sheep, goats, deers, bisons, buffaloes, horses, etc. are largely seen in these grasslands. Then most of the grazers are the food of tigers. Tigers hunt and catches prey. Then Tadoba, Melghat, Pench, Sundarban, Jim Corbett,
Ranthambore, etc. are also declared as a tiger reservoirs in India. Therefore, the tiger's habitats is found in these specific regions in India. Then we can say that mangrove and Sundarban or Sundri trees are mainly found in this forest. Therefore, these forests are also known as mangrove Sundarban forest. Okay. Then there we can see the tigers. Okay. Now the geographical explanation is there. Listen carefully. India is also a mega diverse country in term of wildlife. देर आर मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. तो इंडिया जो है उसमें वाइल्ड लाइफ के बहुत ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं. एलिफेंट्स आर फाउंड इन अ हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट. तो हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट में हम क्या देख सकते हैं? एलिफेंट या एनिमल वहाँ पे देख सकते हैं, एलिफेंट्स को देख सकते हैं. देन वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द स्वैम्पी एंड द मार्शी लैंड ऑफ असम. तो असम की तरफ जो स्वैम्पी और मार्शी लैंड हमें देखने को मिलती है वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस हमें देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं. मतलब एक सिंगी गेंडा जिसे कहते हैं वो हम देख सकते हैं. वाइल्ड एस एंड कैमल आर फाउंड इन द अराइड लैंड्स. तो जो अराइड लैंड्स है, जो शुष्क एरिया जिसमें मतलब वाटर बहुत कम है, ऐसे लैंड में हम वहाँ पे देख सकते हैं एस एंड कैमल्स को. स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स आर फाउंड इन द स्नो कैप्ड रीजन्स ऑफ हिमालयाज. तो हिमालय का जो स्नो कैप रीजन है वहाँ पे हम स्नो लेपर्ड्स को देख सकते हैं. याक इस एनिमल को भी देख सकते हैं. इंडियन बाइसन्स, डियर, एंटीलोप्स एंड मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन. जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे इंडियन बाइसन, डियर, एंटीलोप्स और मंकी जैसे एनिमल को हम देख सकते हैं. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड. तो पूरी दुनिया में इंडिया यही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे टाइगर्स और लायन दोनों देखने को मिलते हैं. रिवर्स, एस्ट्रीज एंड कोस्टल एरियाज आर फाउंड होम्स ऑफ मेनी टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड द गैवियल्स, दैट मीन्स घड़ियाल. तो रिवर्स, उसके बाद जो ऑस्ट्रिच हैं वाटर बॉडीज़, और कोस्टल एरिया जो हैं वो बहुत से सारे टर्टल्स का होम बन चुका है, घर बन चुका है. और उसी तरह से क्रोकोडाइल्स भी हमें देखने को मिलती है. तो एक अलग तरह की क्रोकोडाइल जो है उसे घड़ियाल वहाँ पे कहा जाता है, उसे गावियल्स भी कहते हैं, वो भी इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं. द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स लाइक पिकॉक्स. तो फॉरेस्ट और वेटलैंड ये जो है वो बहुत से सारे बर्ड्स की शेल्टर्ड, मतलब उनके रहने की जगह, उनके आश्रय स्थान हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं. जैसे कि पिकॉक के, इंडियन बस्टर्ड के, किंगफिशर नाम का एक बर्ड है वो भी इंडिया में देखने को मिलता है. उसके बाद जो पीजेंट्स है वो देखने को मिलते हैं. देन डक्स वो भी देखने को मिलते हैं. देन पैराकिट्स, ये मतलब पैरेट होते हैं लॉन्ग टेल वाले, वो पैराकिट्स हमें देखने को मिलते हैं. उसके बाद क्रेन्स एंड पिजन्स ये भी इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं. ऑल दिस स्पीसीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो वाइल्ड लाइफ की एक यूनिक हैबिटेट वहाँ पे देखने को मिलती है ये सारे स्पीसीज के ज़रिए इंडिया के अंदर. मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन द verge of extinction from India because of poaching, pollution and rapidly occurring deforestation, e.g. चीतास. तो बहुत से सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं, बहुत से सारे वाइल्ड लाइफ के जो स्पेसीज़ हैं वो अब इंडिया के अंदर से लुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो शिकार हैं, उनकी जो हंटिंग है, पोचिंग है, वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है. उसके साथ साथ पोल्यूशन की वजह से बहुत से सारे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो रही है. और उसके साथ साथ रैपिडली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है.
है ना, जंगल कम हो रहे हैं, उसकी वजह से भी एनिमल्स कम हो रहे हैं, जैसे कि चीताज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत से सारे नेशनल पार्क्स इन वाइल्ड लाइफ, इस वाइल्ड लाइफ के लिए बनाए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, बर्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो वहाँ पे किया गया है। तो इस तरह की चीज़ें इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने किए हैं। गिव इट अ ट्राई। टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर। द नंबर ऑफ टाइगर्स इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, तो दिन ब दिन जो टाइगर्स की नंबर है इंडिया में से कम हो रहे थे। टाइगर्स बहुत ही टाइगर्स ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे। द सिचुएशन इज़ सिमिलर टू एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स के साथ भी इसी तरह का बर्ताव वहाँ पे हो रहा था। फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट सच प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाइंड अबाउट देयर हैबिटेट्स, तो इस तरह के जो एनिमल्स है और प्लांट्स है उन्हें ढूंढना है और उनके हैबिटेट्स को भी ढूंढना है। व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व दिज एनिमल्स, तो इन एनिमल्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। इन विच रीजन्स कैन दिस बी डन, और कौन से रीजन में ये करना चाहिए। वह है मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ देयर पॉसिबल प्लेसेस, तो उनके पॉसिबल प्लेसेस का एक प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। ओके, by this way we have completed this chapter. I hope that you have understood all the points of the chapter. If you have any problem then you can ask me. Okay, bye, stay home, stay safe.